नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व बारक व सल्लम. Dear students, today is 26th of August 2020. The day is Wednesday. Dear students, we are going to talk about uh, hacking, uh, hackers past and present. Original meaning of hacker is generally explorer, risk taker, and system innovator. MIT's technology model railroad club in 1950s, 1960s to 1980s. Focus shifted from electronics to computers and networks. 1983 movie War Games. The basic idea was taken. Modern meaning of hacker: someone who gains unauthorized access to computers and computer networks. Obtaining login for hacking. Obtaining login names and passwords is the most important thing, and the methods for getting these login names and passwords to get these is the methods are eavesdropping, dumpster diving, and social engineering. A brief description about eavesdropping, dumpster diving, and social engineering is being given here. Eavesdropping is the act of secretly or stealthily listening to the private conversation or communications of others without their consent. The practice is widely regarded as unethical and in many jurisdictions is illegal. Eavesdropping में basically इस एक्ट में secretly या चोरी से कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशंस को सुनना और उससे इन लॉगिन नेम्स या पासवर्ड्स के बारे में असेस करना. इसी तरह डंपस्टर डाइविंग is looking for treasure in someone else's trash. A dumpster is a large trash container. In the world of information technology, dumpster diving is a technique used to retrieve information that could be used to carry out an attack on a computer network. Dumpster diving is not limited to searching through the trash for obvious treasures like access codes or passwords written down on sticky notes. Seemingly innocent information like a phone list, calendar, or organizational chart can be used to assist an attacker using social engineering techniques to gain access to the network. डंपस्टर डाइविंग बेसिकली ये है कि किसी ट्रैश में से किसी खजाने को हासिल करना. इसका कंसेप्ट लिया गया है जब बड़े बड़े लार्ज कंटेनर्स या ट्रैश वाले कंटेनर्स में से कोई कीमती चीज़ों को तलाश करना, सर्च आउट करना. लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डंपस्टर डाइविंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर अटैक करने के लिए. डंपस्टर डाइविंग जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आप ट्रैश में से कोई ट्रेजर हासिल करें जैसे कि एक्सेस कोड्स या पासवर्ड्स जो कि रिटन डाउन ऑन स्टिकी नोट्स, लेकिन सीमिंगली इनोसेंट, बल्कि उसके साथ साथ इनोसेंट इंफॉर्मेशन जिस तरह के फ़ोन लिस्ट है या कैलेंडर है या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हैं जो कि अटैकर को असिस्ट कर सकते हैं, जिनके ज़रिए वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए नेटवर्क को असेस कर सकता है. इसी तरह सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वो उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल की जाए. और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्रिमिनल्स जो से हैं उनके हासिल करने का मुख्तलिफ तरीके हैं. लेकिन इसमें ये होता है कि इंडिविजुअल्स जो टारगेट जिनको किया जाता है, क्रिमिनल्स बेसिकली ट्रिक्स को यूज़ करते हुए ट्राई करते हैं कि उनसे पासवर्ड्स और बैंक इंफॉर्मेशन या उनके कंप्यूटर्स के बारे में कोई सीक्रेट पासवर्ड्स वगैरह हासिल कर लें ताकि उन पे मिलीशियस सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए जा सकें ताकि उनकी मदद से
बाकी दूसरे पासवर्ड्स और बैंक इंफॉर्मेशन जो है उसको हासिल करके उस पर कंट्रोल हासिल किया जाए। तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स की बेस ये है। तो password do's and don'ts: do not use short passwords, do not use a word from dictionary, do not rely on substituting numbers for letters, do not reuse passwords, give ridiculous answers to security questions, enable two-factor authentication if available, have password recoveries sent to a secure email address। तो ये कंप्यूटर फ्रॉड अब्यूज एक्ट वगैरह जो क्रिमिनल जो यूज़ किए गए यूएस में, अमेरिका में, ट्रांसमिटिंग बेसिकली हैकर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें ट्रांसमिटिंग कोड दैट डैमेजेस अ कंप्यूटर, assessing any internet connected computer without authorization, transmitting classified government information, trafficking in computer passwords, computer fraud, computer extortion, etc. Maximum penalty 20 years in prison and $250,000 fine. 2,50,000 fine. Sidejacking. Sidejacking of an open web session by capturing a user's cookie. Sidejacking possible on unencrypted wireless networks because many sites send cookies in the clear. Internet security community complained about sidejacking vulnerability for years, but e-commerce sites did not change practices. साइडजैकिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए एक ओपन वेब सेशन को हाईजैक करना बाय कैप्चरिंग किसी यूज़र की कुकी के थ्रू साइट जैकिंग पॉसिबल हो जाती है, जो कि अनएनक्रिप्टेड वायरलेस नेटवर्क्स अगर कोई यूज़ किए जा रहे हैं तो क्योंकि अक्सर कुकीज़ जो हैं, अक्सर साइट्स जो हैं वो कुकीज़ सेंड करती हैं इन क्लियर, तो वो अनएनक्रिप्टेड वायरलेस नेटवर्क्स जो है वो कैप्चर किए जा सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी की ये कंप्लेंट्स, बहुत सारी ये कंप्लेंट्स की गई साइट जैकिंग के बारे में कई सालों से, लेकिन ई कॉमर्स साइट्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं किया। दिस इज डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ केस स्टडी अबाउट अ फायर शीप इन विच अ साइंटिस्ट बटलर, एरिक बटलर ने एक फायर शीप एक्सटेंशन रिलीज की जो कि फायरफॉक्स ब्राउज़र के लिए थी, और इसके ज़रिए क्या हुआ कि ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स जो उनसे थे वो इजीली साइड जैक उनके वेब सेशंस जो थे वो साइड जैक हुए। तो 50,000 डाउनलोड्स पहले वीक में ही 50,000 5 लाख डाउनलोड्स जो उनसे थे वो फर्स्ट वीक में ही इस एक्सटेंशन के हो गए। तो अट्रैक्टिव, और इसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया मीडिया अटेंशन को, और अर्ली 2011 में इसके फ़ौरन बाद 2010 में जब ये अक्टूबर में ये लॉन्च किया गया एरिक बटलर की तरफ से ये एक्सटेंशन फायर शीप, तो 2011 में फेसबुक और ट्विटर ने फौरी तौर पे अपनी जो सी साइट्स थी उनको सिक्योर करने के तमाम मेथड्स अपनाने शुरू कर दिए। तो अगर हम एक्ट यूटिलिटेरियन एनालिसिस इसका करें तो फायर शीप का जो रिलीज था वो बेसिकली, वैसे तो उसने सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट किया लेकिन इसके बेनिफिट्स हाई थे, क्योंकि लेटर बाद में फेसबुक और ट्विटर ने अपनी साइट्स को सिक्योर कर लिया, ज़्यादा सिक्योर कर लिया। तो हार्म्स जो थे वो मिनिमल थे, कोई ऐसे खास एविडेंस नहीं मिले कि ये उसने कोई नुकसान काज किया हो या आइडेंटिटी थेफ्ट या मैलिशियस प्रैंक्स। लेकिन कंक्लूजन आखिर में ये है कि रिलीज ऑफ फायर शीप वाज गुड। इसी तरह वर्चू एथिक्स एनालिसिस जब किया गया तो फायर शीप के रिलीज होने से बटलर ने बेसिकली पब्लिक को सिक्योरिटी की अहमियत से आगाह किया कि किस तरह अनएनक्रिप्टेड वायरलेस नेटवर्क्स जो से हैं उनको, उनके लिए सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। तो बटलर की जो स्टेटमेंट बेसिकली थी उसमें वो बेसिकली इसलिए उसके जहन के मुताबिक वो ये चाहता था कि प्रोटेक्शन प्राइवेसी प्रोवाइड की जाए। तो इसमें बटलर ने फिर ये एक किस्म की करेज दिखाई है, बहुत ही हिम्मत का मुजाहरा किया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस प्रोग्राम की, फायर शीप एक्सटेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी
खुद ली और बटलर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, एक किस्म का एहसान किया कि प्रोग्राम को फ्रीली अवेलेबल किया। तो उसकी एक्शन और जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस बात की गम्माज हैं कि वो पब्लिक गुड के लिए इंटरेस्टेड था कि सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए। तो कैंटियन एनालिसिस जो है उसके मुताबिक कि किसी असेसिंग समवन एल्स यूजर अकाउंट इज, ये एक किस्म का उसकी प्राइवेसी पर हमला है और ये गलत है। लेकिन बटलर ने एक टूल प्रोवाइड किया जो कि अगरचे जिसने सिंपल या सादा लोगों को भी कुछ गलत करने पर मजबूर किया। तो इसलिए ये मॉरल, उसकी मॉरल अकाउंटेबिलिटी उसकी मिस डीड के लिए, उसके गलत फेल के लिए होनी चाहिए। तो बटलर जो सा था वो विलिंग था कि वो शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन प्राइवेसी वायोलेशंस, के शॉर्ट टर्म प्राइवेसी की जो शॉर्ट टर्म वायोलेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जाए, तो टॉलरेट कि उनको बर्दाश्त किया जाए। दैट मीडिया प्रेशर वुड फोर्स, क्योंकि वो ये चाहता था कि मीडिया का जो प्रेशर है वो वेब रिटेलर्स को सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए उन पे प्रेशर बनाए। तो उसने फायरशीप के जो विक्टिम्स थे उनको ट्रीट किया एज अ मीन्स टू हिज एंड। उसने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने मिशन के लिए, बेसिकली सिक्योरिटी को एनहांस करवाने के लिए उसने बेसिकली फायरशीप को उसने ट्रीट किया, जो फायरशीप के जो विक्टिम्स थे उनको ट्रीट किया। इट वाज रॉन्ग फॉर बटलर टू रिलीज फायरशीप। अगर कैंटियन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बटलर का ये फेल ठीक नहीं था, उसने गलत किया फायरशीप को रिलीज करके। तो डियर स्टूडेंट्स, it was some basic introduction of hacking. Okay, dear students, we'll meet in the next lecture. Allah Hafiz.